Good morning, dear students. How are you today? I hope you are all fine at home. Welcome back to science class. Before we start the exercise of lesson number 2, living and non-living things, let's recall the previous session. Open the page number 12. In last session, we learned about characteristics of living things and non-living things. There are 7 characteristics of living things. These are movement, respiration, growth, irritability, nutrition, excretion, and reproduction. Then, characteristics of non-living things. Non-living things do not show any characteristics of living things. Non-living things ये लिविंग थिंग्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करते हैं, उनके शो नहीं होते हैं. दे डू नॉट मूव, रिस्पायर, ग्रो, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, फीड, एक्सक्रिएट, नॉर डू दे रिप्रोड्यूस. ओके, so let's open the page number 13. Let's start the activity number 2. Activity number 2, state whether true or false. Number 1, animals can prepare their own food. एनिमल खुद के फूड तैयार करते हैं. यस या नो? यस. इट मीन्स एनिमल्स अपने फूड तैयार करते हैं कि नो. ओके, नो मीन्स फॉल्स. नंबर 2, प्लांट्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स. क्या प्लांट्स को मनुष्य की तरह सेंस ऑर्गन्स होते हैं? नो. इट मीन्स फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइव्स. प्लांट्स की हमेशा उनकी ग्रोथ होती रहती है. यस, ट्रू. नंबर 4, वी कैन मेक नॉन लिविंग थिंग्स मूव. क्या नॉन लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं? नो. क्या नॉन लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं? नहीं. वी कैन मेक नॉन लिविंग थिंग्स मूव. हम नॉन लिविंग थिंग्स को मूव कर सकते हैं. ओके, इट मीन्स ट्रू. ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. जो जानवर हैं, सभी प्रकार के जानवर क्या एग्स देते हैं क्या? नो. इट मीन्स फॉल्स. ओके, इज दैट क्लियर? अगेन, animals can prepare their own food. False. Number 2, check your answer. Plants also have sense organs. False. Plants grow throughout their lives. True. We can make non-living things move. True. All animals reproduce by laying eggs. It means false. Okay, clear? Activity number 3, fill in the blanks with suitable words from the list given below. First, snakes crawl because they do not have limbs. Okay, the first answer, limbs. Second, plants breathe through tiny holes called स्टोमेटा. ओके, प्लांट्स के जो छोटे छोटे होल रहते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. द ट्रंक ऑफ अ ट्री बिकम्स देयर एवरी ईयर. हर साल प्लांट्स की ब्रांचेस, ट्रंक मीन्स ब्रांचेस, बढ़ती है. ओके. नंबर 4, लिविंग थिंग्स ब्रीथ because they need
दे नीड ऑक्सीजन। मनुष्य की तरह लिविंग थिंग्स को ब्रीथ करने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? ऑक्सीजन की। ओके। प्लांट्स मूव टूवर्ड्स लाइट। आप लोगों को पता है, जैसे अगर एक हाथ पौधा हम मतलब घर के अंदर रखते हैं तो जिस तरफ लाइट होता है प्लांट्स की मूवमेंट उसी तरफ होती है। ओके। फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ। प्लांट्स जो है अपना फूड किस में प्रिपेयर करता है? किसके प्रेजेंस में करता है? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके। ओके, check your answer. The first, snakes crawl because they do not have limbs. Second, plants breathe through tiny holes called stomata. Okay. The third, the trunk of a tree becomes thicker every year. Number 4, living things breathe because they need oxygen. Plants move towards light. Number 6, food is prepared by plants in the presence of sunlight. Okay, clear? Okay, and write in your copy. Let's start the activity number 4. First, I will explain the question answers and then write in your copy. Okay. The first questions, explain why a car moves at it is said to be non-living. कार तो आप लोगों को पता है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर उसे मतलब मूव्स। एक्सप्लेन व्हाई अ कार मूव्स इट इज़ सेड टू बी नॉन लिविंग। आप सभी को पता है कि कार तो नॉन लिविंग थिंग है, फिर वो मूव कैसे होती है? ओके। अ कार मूव्स बट इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, हेंस इट इज़ सेड टू बी नॉन लिविंग। सभी को पता है कि कार कौन चलाता है? तो मैन, है ना। लिविंग थिंग्स, मैन, इट मीन्स लिविंग थिंग्स। तो कार अपने आप चलती है क्या? नो, कार मनुष्य के द्वारा चला जाती है। सो अ कार मूव्स बट इट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन, hence it is said to be non-living. Okay. Question number 2. Why do living things need to reproduce? Living things को reproduce करने की क्यों नीड है? Living things need to reproduce to ensure the survival of their species. इसका मतलब है कि लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस करने की नीड है क्योंकि अपने अस्तित्व को, इट मीन्स अपनी प्रजाति को, उनको जीवित रखना है। ओके, इसके लिए वो रिप्रोड्यूस करने की उनको नीड है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेट हाउ प्लांट्स मूव विदाउट चेंजिंग देयर पोजीशन। प्लांट्स अपनी पोजीशन को बिना बदले कैसे चेंज कर सकते हैं? Answers. If we keep a potted plant inside our house near the window, we will notice that it will start growing towards the light. आप लोगों को एक प्लांट्स, जैसे हम लोग एक प्लांट्स लेते हैं अपने घर के अंदर विंडो की तरफ रख रहे हैं, और हम लोग अगर नोटिस करते हैं तो देखा जाता है इट विल स्टार्ट ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट, मतलब जहाँ से सनलाइट आ रहा है उसकी तरफ उसकी मूवमेंट होती है, मतलब ग्रोइंग होती है। सो प्लांट्स शो मूवमेंट विच इज़ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल विदाउट चेंजिंग देयर पोजिशन। और क्या होता है इससे, मतलब समझ में आ जाता है कि प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब बिना बदले उनकी पोजीशन चेंज होते रहती है। ओके, इज दैट क्लियर? नंबर 4 क्वेश्चंस, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाता है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप सभी को पता है जैसे मनुष्य को
भोजन तथा पानी की और हवा की आवश्यकता है, वैसे ही प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. ओके. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and the green coloring matter in their leaves called chlorophyll. Plants use the carbon dioxide of the air and water which they absorb with the help of their roots to make food by the process of photosynthesis. प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसकी और वाटर, इन दोनों का मिक्सचर बना के उनके रूट्स की तरफ एक जो प्रोसेस रहती है भेजने की, उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और उससे ही प्लांट्स अपना फूड बनाता है. ओके, क्लियर. अगेन आई रिपीट इट. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ग्रीन कलरिंग मैटर इन देयर लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल. Plants use the carbon dioxide of the air and water which they absorb with the help of their roots to make food by the process of photosynthesis. Okay? Is that clear? Okay. Question number 5. Why do living things need food? Living things को food की क्यों need होती है? Living things need फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. आप सभी को पता है लिविंग थिंग्स को फूड की क्यों नीड होती है? एनर्जी और ग्रोथ के लिए. ओके, शक्ति के लिए और बढ़ने के लिए. ओके. नेम द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, रिस्पायर, ग्रोज, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, नीड न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रिएट. सभी को पता है लिविंग थिंग्स क्या शो करते हैं? मूवमेंट, रिस्पिरेशन, है ना, ग्रोथ, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, रिप्रोड्यूस, नीड न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रिएट. इट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने रीड किए हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स उनके फीचर्स हैं. ओके ओके, बाय. हाँ, अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स पूरे बताया बेटा, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है. उसका मैं PDF सेंड करूँगी आपको. उसके थ्रू जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने सेंड किया है आपको अपनी कॉपी में लिखना है. ओके, बाय, टेक केयर, स्टे एट होम.